Hello and welcome to White Hat Reality, where we bring you value over valuation. In today's video, we are diving into a comparative review of 3 projects by 3 of India's top developers. Interestingly, 2 of these developers are new entrant in the Noida and Ghaziabad markets, while the third, Godrej Properties, is already a well-known name across Delhi and NCR, especially for its aggressive expansion strategy. In today's video, we'll give you a basic comparison between these 3 projects. So आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तीनों ही प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें प्रोजेक्ट हाइलाइट्स, फ्लोर प्लान्स एंड प्राइसिंग को तो कंपेयर करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही वीडियो के लास्ट सेक्शन व्हाइट हैट एडवाइस में we will also help you understand which of these projects is a better fit, whether you are an end user looking for a home or an investor aiming for returns. First, we'll talk about Prestige City Indirapuram. The project has officially launched and has already received a strong response in the market, but there is a twist and we'll briefly walk you through the key pros and cons of the project. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गॉडरेज के अपकमिंग लॉन्च गॉडरेज मैजेस्टी को, जिसको रेरा का अप्रूवल मई स्टार्ट में ही मिल गया था एंड प्रोजेक्ट इज नाउ सेट टू लॉन्च वेरी सून. ईओआई प्रोसेस इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. और फिर हम शोभा के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे. शोभा को रेरा का अप्रूवल अभी मिलना बाकी है, लेकिन होपफुली कुछ ही दिनों में इस प्रोजेक्ट को भी रेरा का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा. देयर आर सम कॉमन पॉइंट्स अमंग ऑल 3 डेवलपर्स. ऑल 3 हैव बीन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स अक्रॉस मल्टीपल सिटीज इन साउथ इंडिया. दे आर ऑल्सो वेल नोन फॉर देयर पैन इंडिया प्रेजेंस. Additionally, all 3 are listed on the stock exchange and have been performing well financially. That's exactly why we have decided to compare projects from these 3 developers who interestingly are all launching their projects in Noida and Ghaziabad region around the same time. So now that you know what to expect from this video, without any further delay, let's jump right into the comparison. Prestige City Indirapuram extension is the largest project not just among these 3 but also one of the biggest residential developments announced in recent years across the Ghaziabad and Noida region. What sets this project apart is its scale. The entire 62.5 acres will be developed over the next 5 years, promising a comprehensive township rather than just isolated towers. So पहले भी बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं इस रीजन में, लेकिन उनके डिलीवरी एंड लॉन्चेस मल्टीपल फेजेस में हुए हैं. प्रेस्टीज में भी लॉन्चेस फेजेस में हो रहे हैं, लेकिन डिलीवरी टाइमलाइंस तीनों ही फेज की काफी सिमिलर होने वाली है. So अगले 5 साल में we expect Prestige to deliver all these 3 phases of the project along with the mall and other facilities, which is one of the key highlights of the Prestige City format projects. Prestige का ये प्रोजेक्ट नोएडा के सेक्टर 63 के ऑपोजिट सिद्धार्थ विहार में लोकेटेड है एंड इस प्रोजेक्ट ने गाजियाबाद के रियल एस्टेट में अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट ऐड किया है. प्रोजेक्ट में 4041 यूनिट्स प्रपोज्ड हैं, जिनमें से क्लोज टू 2500 यूनिट्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट. हालांकि इन्वेंटरी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी प्रेस्टीज ने बाकी डेवलपर्स की तरह मैनिपुलेटिव ही रखी थी. जहां अच्छी इन्वेंटरी शुरुआत से प्रेस्टीज ने होल्ड करके रखी थी एंड जैसे जैसे प्राइस रिविजन प्रेस्टीज ने शुरू किया, वैसे वैसे नई इन्वेंटरीज को प्रीमियम प्राइस टैग के साथ प्रेस्टीज ने ओपन कर दिया. इवन विद इन द टावर्स, Prestige made it quite challenging for early buyers. Many who waited patiently and participated optimistically in the EOI process had to compromise on their preferred inventory choice. In fact, some early buyers eventually dropped the idea of purchasing in Prestige City because they felt the process was unfair. If you are one among them, please share your experience in the comments. खैर प्रोजेक्ट काफी प्रॉमिसिंग है एंड यहाँ आपको 2 BHK से लेकर 3, 4 एंड 5 BHK एंड डुप्लेक्सेस एंड पेंट हाउसेस के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेंटरी 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव के लिए अवेलेबल थी. However, the new inventories are now priced upwards of 14,000 rupees per square feet. अब प्राइस यहाँ आगे कहाँ तक पहुँचेंगे ये तो प्रेस्टीज के सेल्स के नंबर ही डिसाइड करेंगे. लेकिन अब प्रेस्टीज के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होने वाला है, क्योंकि गाजियाबाद के मार्केट में 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्राइस टैग से ज्यादा चार्ज करना काफी मुश्किल टास्क लगता है. गॉडरेज प्रॉपर्टीज ने भी फर्स्ट टाइम एवर ग्रेटर नोएडा वेस्ट मार्केट में एंट्री ली है. गॉडरेज का ये प्रोजेक्ट सेक्टर 12 में लोकेटेड है एंड ऑल सेट टू लॉन्च वेरी सून. गॉडरेज मैजेस्टी एज अ प्रोजेक्ट पिछले बाकी गॉडरेज के प्रोजेक्ट से कंपैरेटिवली वेल प्लान्ड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन की तरह निकल कर आ सकता है. लेकिन गॉडरेज के पास पास्ट के डिलीवरी से रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं, जिसे हम हमारे पास्ट वीडियो गॉडरेज मैजेस्टी के रिव्यू में काफी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और इन चैलेंजेस के बाद भी गॉडरेज का ये प्रोजेक्ट कैसा परफॉर्म करने वाला है ये नेक्स्ट 1 मंथ में हम सबको पता चल जाएगा. मार्केट कंडीशंस फॉर ऑल द सेक्टर 10 एंड 12 प्रोजेक्ट्स आर नॉट वेरी फेवरेबल दीज डेज, सो प्रोजेक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. गॉडरेज
गॉडरेज मेजेस्टी की प्लानिंग उनके पहले लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में काफी रिफाइंड हो सकती है एंड प्रोजेक्ट में यूनिट के साइजेस भी मार्केट की डिमांड को अच्छे से स्टडी करके प्लान किए गए। बाकी हम सब जानते हैं गॉडरेज के मार्केटिंग टीम काफी स्ट्रॉन्ग है एंड दे आर वेल वर्स्ड इन क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट दैट इफेक्टिवली ड्राइव्स बुकिंग फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। गॉडरेज मेजेस्टी का लैंड साइज अप्रोक्सीमेटली 8 एकर्स का है विद 777 यूनिट्स प्लान्ड इन दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में 2, 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे विद 3 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 1754 स्क्वायर फीट। 2 BHK के यूनिट भी इस प्रोजेक्ट में प्लान्ड है लेकिन वो काफी लिमिटेड नंबर में होंगी। द 2 BHK will be available only on the refuge floors which are the 19th and 29th floor of the building। गॉडरेज मेजेस्टी में प्राइसिंग को पूरी तरह से अभी ओपन नहीं किया गया है लेकिन जो प्राइस मार्केट में अभी सर्कुलेट किया जा रहा है EOI प्रोसेस में वो 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है। We believe that on the allotment day Godrej might offer buyers a decent discount, potentially bringing the pricing down to around 13,500 rupees per square foot. Sobha Sector 36 is expected to be priciest launch among all these 3 projects. Sobha is also known for delivering top quality projects, often considered superior in quality compared to both Godrej and Prestige. और जो लोग शोभा को गुरुग्राम, बैंगलोर या दुबई से जानते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि शोभा के प्रोजेक्ट्स अपने सेगमेंट में सबसे एक्सपेंसिव होने के साथ साथ क्वालिटी वाइज भी काफी सुपीरियर होते हैं। प्रोजेक्ट के साइज बाकी दोनों प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है जिसमें 3.5 एकर्स के लैंड में 2 विंग्स प्लान किए गए हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट विल बी अप्रोक्सीमेटली 300। यहाँ भी आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्राइसिंग की बात करें तो शोभा के ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए प्री लॉन्च प्राइस 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का एक्सपेक्टेड है। शोभा के प्रोजेक्ट में लोडिंग प्रेस्टीज एंड गॉडरेज दोनों से कम होना एक्सपेक्टेड है। इस तरह से शोभा के प्रोजेक्ट में फ्लोर प्लान्स की एफिशिएंसी की वजह से शोभा अपने प्राइस प्रीमियम का कुछ पार्ट इस तरह से कंपनसेट कर सकता है। बाकी ग्रेटर नोएडा जैसी लोकेशन के लिए 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस एक्सेप्टेंस काफी मुश्किल होगा लेकिन जैसा कि हमने शोभा के लिए बनाए गए लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि शोभा के इस प्रोजेक्ट का बायर वो नहीं है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट या ग्रेटर नोएडा में अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है बल्कि ये प्रोजेक्ट उन लोगों को ज्यादा अपील कर सकता है जो नोएडा एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशन में अपने लिए घर प्लान कर रहे हैं लेकिन एक्सप्रेसवे में ब्रांडेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट की प्राइसिंग उनकी रीच से बाहर है। प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम में बायर्स को 1300 स्क्वायर फीट से लेकर 2910 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। 2 BHK 1300 स्क्वायर फीट का सिंगल ऑप्शन प्रोजेक्ट में अवेलेबल है जो लगभग 1.8 करोड़ ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। 3 BHK के ऑप्शन 1681 स्क्वायर फीट से लेकर 2262 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 2.5 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ के बीच में ये इन्वेंटरीज आपको मिल जाएंगी। 4 BHK में 2490 स्क्वायर फीट से लेकर 2910 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनमें प्राइसिंग 3.35 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। कुछ ऑप्शंस डुप्लेक्सेस एंड पेंट हाउसेस में भी अवेलेबल हैं जो अभी प्रेस्टीज ने ओपन नहीं किए हैं। साइजेस मार्केट के डिमांड के हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है व्हिच इज गेटिंग कन्वर्टेड इन गुड नंबर ऑफ सेल्स फॉर प्रेस्टीज। फ्लोर प्लान्स प्रेस्टीज के काफी इंप्रेसिव है एंड सुपर एरियन कार्पेट एरिया के बीच का गैप लगभग 37% से 42% के बीच का है व्हिच इज क्वाइट इंप्रेसिव। हालांकि ये डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि प्रेस्टीज के अपार्टमेंट्स में बैल्कनी स्पेसेस यहाँ बन रहे नॉर्मल अपार्टमेंट के कंपैरिजन में लगभग 50% तक कम है जिससे इंटरनल स्पेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कुछ लोगों के लिए ये एक फेवरेबल चेंज है एंड फ्यू माइट नॉट लाइक दिस चेंज हु लव हैविंग मल्टीपल बैल्कनीज इन देयर अपार्टमेंट। गॉडरेज मेजेस्टी के लिए भी अभी फ्लोर प्लान मार्केट में सर्कुलेट नहीं किए गए हैं लेकिन साइजेस अनाउंस काफी पहले ही कर दिए गए हैं जो कि गॉडरेज के वेल थॉट स्ट्रेटजी का पार्ट रहा है पिछले कुछ लॉन्चेस में। हालांकि फ्लोर प्लान्स की बेसिक डिटेल्स आपको रेरा की वेबसाइट से मिल सकती है बट ओनली वेरी बेसिक। प्रोजेक्ट में 2 BHK के बहुत ही लिमिटेड अपार्टमेंट्स होंगे जो कि 19th and 29th फ्लोर में रिफ्यूज फ्लोर्स पर प्लान किए गए हैं जिनका साइज अप्रोक्सीमेटली 1500 स्क्वायर फीट के आसपास होना एक्सपेक्टेड है। 3 BHK का ऑप्शन 1754 स्क्वायर फीट का होगा जो अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास आपको कॉस्ट कर सकता है। 3 BHK प्लस स्टडी वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो 2368 स्क्वायर फीट का होगा जो लगभग 4.2 करोड़ के आसपास आपको कॉस्ट कर सकता है। 4 BHK होगा 2575 स्क्वायर फीट का जो कि आपको 4.8 के आसपास तक का कॉस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें सेक्टर 10 एंड 12 में अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट की तो VVIP एड्रेसेस एंड एस हनाई अभी तक सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में कंसीडर किए जाते हैं बट गॉडरेज का ये प्री लॉन्च प्राइस बाकी दोनों डेवलपर से लगभग 15% ज्यादा होना एक्सपेक्टेड है विद 13,500 रुपीज से 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एज BSP। गॉडरेज के लिए भी इस बार इस प्रोजेक्ट में इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट की तरह परफॉर्म करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है बट यू नेवर नो इफ दे लोअर डाउन द प्राइसेस लिटिल मोर दे कैन गेट अ गुड रिस्पॉन्स। हिस्टोरिकली गॉडरेज के फ्लोर प्लान्स के लिए नोएडा मार्केट में काफी मिक्स्ड रिव्यूज रहे हैं लेकिन इस बार गॉडरेज के प्लानिंग लोकल आर्किटेक्ट कॉन्फ्रेंस ने की है जिसकी वजह से चांसेस है कि गॉडरेज
मेजेस्टी में फ्लोर प्लान्स नोएडा मार्केट की प्रेफरेंस के हिसाब से प्लान होंगे। लोडिंग फैक्टर गॉडरेज के प्रोजेक्ट में प्रेस्टीज से थोड़ा ज्यादा होना एक्सपेक्टेड है। बाकी गॉडरेज के पास सबसे बड़ा एडवांटेज उनकी लोकेशन का है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए नंबर ऑफ बायर्स गाजियाबाद के किसी भी लोकेशन से हमेशा ज्यादा रहते हैं। शोभा ग्रेटर नोएडा में यूनिट साइजेस स्टार्ट हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 1200 स्क्वायर फीट से, जो कि 2 BHK अपार्टमेंट होगा एंड स्टार्टिंग प्राइस फॉर दिस यूनिट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.7 करोड़। 3 BHK के 2 ऑप्शंस होंगे प्रोजेक्ट में, जिसमें पहला एंट्री लेवल का 3 BHK 1550 स्क्वायर फीट के आसपास का होना एक्सपेक्टेड है, जिसकी प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 2.3 करोड़ के आसपास की होगी। एंड 3 BHK का बड़ा साइज 1850 स्क्वायर फीट के आसपास एक्सपेक्टेड है, जिसकी प्राइसिंग 2.7 से 2.8 करोड़ के आसपास हो सकती है। द प्राइसेस वी आर मेंशनिंग हियर आर ऑल इंक्लूसिव एंड बेस्ड ऑन आवर ओन assumptions and internal calculation. As of now, no official pricing has been announced by the company. प्रोजेक्ट में 4 BHK के साइज काफी रीजनेबल है, which is only 2400 स्क्वायर फीट, जिसका इनिशियल प्राइस 3.36 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेड है। शोभा के फ्लोर प्लान्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं एफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से शोभा के अपार्टमेंट्स में लोडिंग फैक्टर कम होता है। सुपर एरिया से कार्पेट एरिया का गैप जनरली शोभा के प्रोजेक्ट में 40% से कम रहता है, तभी यहाँ आपको 2400 स्क्वायर फीट में एक 4 BHK का डिसेंट साइज भी मिल पाएगा। अगर एंड यूजर पर्सपेक्टिव से देखें तो तीनों ही प्रोजेक्ट्स प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम, गॉडरेज मेजेस्टी और शोभा ग्रेटर नोएडा अपने अपने बायर सेगमेंट को टारगेट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तीनों प्रोजेक्ट्स के बायर्स का अप्रोच काफी सिमिलर हो सकता है, स्पेशली उन लोगों का जो ब्रांडेड रेजिडेंशियल स्पेसेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं। प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम उन बायर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जो सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली या गाजियाबाद की बेल्ट में रहते हैं। सबसे बड़ी वजह है इसकी कनेक्टिविटी। इस एरिया से प्रेस्टीज सिटी तक का आना जाना रिलेटिवली काफी इजी है। लेकिन कुछ बायर्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए गाजियाबाद एज एन एड्रेस उतना अपीलिंग नहीं होता। ऐसे बायर्स जनरली साइमल्टेनियसली ग्रेटर नोएडा वेस्ट को भी कंसीडर करते हैं और उसके लिए गॉडरेज मेजेस्टी एक वायबल ऑप्शन बनकर निकल कर आता है। गॉडरेज मेजेस्टी का बायर बेस लार्जली वो लोग हैं जो सेंट्रल नोएडा में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, लेकिन नए ब्रांडेड लॉन्चेस न होने की वजह से उनके पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड है। गॉडरेज का प्रोजेक्ट गॉडरेज रेवेरन भी काफी प्रोमिनेंट लोकेशन में सिचुएटेड है, लेकिन उसकी प्राइसिंग कंपैरेटिवली काफी हाई है, इसलिए वो इवन मैक्सिमम लग्जरी बायर्स के लिए भी आउट ऑफ रीच हो जाता है। अब हम बात करें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बायर्स के रेफरेंस में, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मैक्सिमम बायर्स के बजट में गॉडरेज मेजेस्टी जैसा प्रोजेक्ट नहीं आता है, लेकिन एक छोटा सा परसेंटेज ऐसा भी है जो प्रीमियम ब्रांड के लिए स्ट्रेच करने के लिए तैयार होता है। वहीं शोभा ग्रेटर नोएडा उन बायर्स के लिए है जो ओरिजिनली अपना घर नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे लोकेशन पर प्लान कर रहे हैं, जैसा कि हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी मेंशन किया था। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंगल की। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो ऑनेस्टली आपको अभी इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो भी एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए। पोजीशन तक अगर सब कुछ प्रॉमिस टाइमलाइन एंड क्वालिटी के साथ डिलीवर हो जाता है तो इन प्रोजेक्ट का रीसेल प्राइस अप्रोक्सीमेटली 20 to 22,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच सकता है। बाकी इस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ROI क्या बनेगा ओवर अ 4 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन बेस्ड ऑन ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट एट एंट्री। और हाँ, इन तीनों में से कोई प्रोजेक्ट फ्यूचर में ऐसा भी निकल कर आ सकता है जो अपने एरिया का लैंडमार्क भी बन सकता है, और ऐसे प्रोजेक्ट में रहना एक स्टेटस सिंबल तो बन ही जाता है। उन प्रोजेक्ट के लिए प्राइस नेचुरली एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बन सकता है अपने एरिया का लैंडमार्क? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट रिव्यू में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।